Hello, my dear friends, how are you? Today we are again back with one more great personality, Mr. Shishir Sharma. Mr. Shishir Sharma is an Indian film and television actor. He has been credited for over 40 plus films and TV serials. Mr. Sharma has also acted as leading and supporting actor in hit films including Fana, Sarkar Raj, Mary Kom, Tanwats Manoratans, Dangal, Razi, Uri the Surgical Strike, and many more. Mr. Sharma made a foray into the web space with a role in popular TV of play web series Permanent Roommates. So let's begin our talk with Mr. Shishir Sharma. Hello. Hi, Harsh. Hello, sir. Good morning. Good morning to you. Sir, how are you? I'm absolutely fine. How are you? Sir, I am good. Sir, how is your quarantine going on? Quarantine is absolutely fine, yaar. I am enjoying this period. Jitna bhi waqt mila hai, I think it's the best period that I've got to do a lot of things. बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ करने की सोच रहा हूँ, बहुत कुछ करूँगा. अगर ये extend हुआ तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है. I am enjoying this period completely. I know there's a lot of misery. I know there's a lot of migrant workers are finding it difficult. The industries are finding it difficult. We as a film industry are finding it extremely difficult. Lots of workers there in this film industry. तो हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सवाल है personally, I'm enjoying it. I'm doing a lot of work. Sir, how much it has affected your work? Professionally, it has affected me because मैं 3 फिल्में कर रहा था और तीनों फिल्म अब रुकी हुई हैं. एक वेब सीरीज थी जिसकी डबिंग करनी थी और वो भी रुकी हुई है. अब the federation has written a letter to the Chief Minister of Maharashtra कि please allow post production to happen with the minimal of staff inside the studio with all the precautions taken. अब जब तक वो जवाब नहीं आता है तब तक सब कुछ अंडर लॉकडाउन है and Mumbai is anyway is a red zone area. But yes, it has affected not only industry in the country, small businessmen, big industrial houses, everybody it has affected. I mean, we were just talking yesterday कि जहाँ से हम शाम को भेल खाया करते थे, भेल वाला आता था अपनी वो टोकरी लेके, उसका क्या होगा? वो कब तक ऐसे जिएगा? कब तक वो अपने ये Artist, sir, we are eagerly looking to listen your story first into TV serials, then in Bollywood, then now in series. खैर मैंने एक्टिंग शुरू की थी 1974 में, 1974 स्टेज से मैंने शुरू की और अभी तक स्टेज करता हूँ. कुछ 40 साल हो गए, 40-45 साल हो गए स्टेज करता हूँ, स्टेज करता रहूंगा मरते दम तक, because that is my first love and there is nothing more inspiring, there is nothing more exhilarating than being on stage and performing to a live audience. क्योंकि लाइव ऑडियंस थिएटर शो करने के बाद जो अप्रिसिएशन आपको इमीडिएटली मिलता है वो फिल्म में या वेब सीरीज में या टीवी में बिल्कुल नहीं मिलता है. तो दैट फर्स्ट थिंग दैट द एक्टर wants is an appreciation for his work on stage. स्टेज पे काम करना मुश्किल है क्योंकि आप अकेले हैं वहाँ, कोई रीटेक नहीं है, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपको. अगर आप कुछ भूल गए तो आपका फ्यूनरल है, अगर अच्छा कर लिया तो आपकी प्रशंसा है, अगर फिल्म में गलत भी कह दिया आपने या बोल दिया तो there is always a possibility of a retake and retake and retake. आपको जितने भी टेक्स करने कर सकते हैं, फिल्म है, टेलीविजन है, वेब सीरीज है, जो भी है. और ऐसे करते करते 1994 में 1995 में मैंने अपना पहला शो किया था जिसका नाम था स्वाभिमान. स्वाभिमान एक बहुत ही अच्छा शो था
लोगों को बहुत पसंद आया था। वो शांति के दौरान आया था, शांति पहले आए और फिर स्वाभिमान का शो आया। और बहुत सारे एक्टर्स स्वाभिमान के शो से निकले। उनमें से मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, हर्ष छाया, रोहित रॉय, किट्टू गिडवानी, अंजू महेंद्रू, दीपक पराशर, ऐसे बहुत सारे थे जो स्वाभिमान के स्टेबल से निकले, जो जिन्होंने स्वाभिमान शो किया था। और फिर ऐसे करते करते टेलीविजन, फिर सैटेलाइट टेलीविजन आया। सैटेलाइट टेलीविजन आने के बाद हमने बहुत सारे शोज किए। 23 साल तक मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। और फिर मैंने सोचा कि अब टेलीविजन बहुत हो गया, क्योंकि टेलीविजन में प्रोग्रेशन नहीं था। वही चीजें बार बार कह रहे थे, दोहरा रहे थे शोज के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए। 2002 में मेरी पहली फिल्म राम गोपाल वर्मा की जो सत्य आई थी, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था रामू के साथ। फिर मैंने 3 फिल्में की, सरकार राज बच्चन साहब के साथ, अभिषेक के साथ, ऐश्वर्या के साथ, गोविंद नामदेव थे उसमें, सयाजी शिंदे थे। और फिर ऐसा दौर चला, टेलीविजन में करता रहा। मुझे फिल्में नहीं मिली उतनी जितनी मिलनी चाहिए थी, जैसे मैंने सोचा कि शायद मिलेंगी, लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं। ऐसे करते करते संजय लीला बंसाली एक फिल्म कर रहे थे, जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसका नाम था मैरी कॉम। तो उमंग कुमार साहब, जो बहुत ही प्रसिद्ध क्या कहते हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, probably the best art director in the country. He called me and he said, एक रोल है तुम्हारे लिए, will you like to do it? The coach, one of the coaches of Priyanka Chopra in Mary Kom. Mary Kom was a biopic. मैंने कहा yes, of course, why not? मैंने प्रियंका के साथ एक और फिल्म की थी बहुत पहले। हमने ऑस्ट्रेलिया में शूट की थी वो फिल्म। अर्चना पूरन सिंह भी थे और मैं भी था। तो मैंने कहा yes, of course, why not? वो फिल्म रिलीज होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ और फिल्में मिलेंगी, मुझे नहीं मिली। फिर समय आया जब मुझे मुकेश छाबरा के ऑफिस से एक कॉल आया कि दंगल एक फिल्म बन रही है आमिर खान के साथ, उसमें एक छोटा सा रोल है आपके लिए, आप करना चाहेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहूंगा। 2 दिन का काम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा 2 दिन, नो प्रॉब्लम। आमिर खान के साथ कौन मना कर सकता है। सेट पे पहुंचा। आमिर खान के पिताजी को हमारी फैमिली बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मेरी माँ भी एक्टर हुआ करती थी एक जमाने में। उन्होंने भी ताहिर हुसैन साहब के साथ काम किया था स्टेज पे। तो आमिर खान के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हमने कहा कि दिस इज द रिलेशनशिप that my mother had with your father on stage. So he was very happy, very intrigued. फिर हमने बातचीत शुरू की, फिर एक हम दोस्त बन गए सेट पे। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी उनकी। एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है दंगल में, और सबको पता है कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। वो हर एक सीन, क्योंकि हरियाणवी थी भाषा, तो हर एक सीन वो कुछ 100-120 बार किया करते थे अपने घर में एक ट्यूटर के साथ, क्योंकि भाषा इतनी आसानी से नहीं आती। आप किसी एक्टर को नहीं कह सकते कि आप सेट पे आएंगे और आपको पता भी नहीं कि आपको हरियाणवी बोलनी है। डायरेक्टर ने कहा आप हरियाणवी बोलिए और हरियाणवी में कैरेक्टर प्ले करते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए परफेक्शन चाहिए होता है। तो आमिर खान ऐसे एक एक्टर थे जो बहुत ही कंप्लीट एक्टर जिसको कहते हैं, परफेक्शनिस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फिर उसके बाद मेघना जी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था तलवार। 7:30 बजे मैं उठा फोन कॉल से। हनी त्रेहान जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा शिशिर 9:30 बजे ना मेघना जी के ऑफिस पहुंच जाना। मैंने कहा अच्छा क्यों? वो एक फिल्म कर रही हैं, तुम पहुंच जाना बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहुंच जाऊंगा। पहुंच गया मैं, और मुझे नहीं पता था कि वो रोल मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। पहली बार मेघना जी से मिल रहा था, उनके ऑफिस में गया, मैं मिला, बातचीत हुई, उन्होंने रोल समझाया, सब कुछ कर लिया।
और सडनली उन्होंने कहा कि कॉस्ट्यूम वाले को बुलाओ और हेयर वाले को बुलाओ। मैंने कहा है ये क्या हो गया, मैं कर रहा हूं क्या? बोले हाँ आप कर रहे हैं। ओह, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। एक तो मेघना जी वाज सच अ डायरेक्टर। तलवार करने के बाद मुझे पता लगा कि वो कैसी कंप्लीट डायरेक्टर हैं, बहुत ही मेटिकुलस डायरेक्टर हैं, बहुत ही मेथोडिकल डायरेक्टर हैं। और फिर सोने पे सुहागा इरफान खान के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। मैंने एक ऐड किया था इरफान साहब के साथ बबूल टूथपेस्ट का। इरफान खान और मैं क्रिकेट खेला करते थे। इंडियन एयरलाइंस एक ग्राउंड है यहाँ सैंटा क्रूज ईस्ट में, तो वो भी सुबह आते थे, मैं भी सुबह जाया करता था। हमारे नेट्स अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन बातचीत होती थी। सुबह चाय, वो जो टपरी वाली चाय होती है, वो हम साथ में पिया करते थे, पूरी टीम, जितने भी लोग थे सुबह प्रैक्टिस पे। तो इरफान साहब के साथ वो एक मौका मिला काम करने का। अनदर फैंटास्टिक एक्टर, मतलब वो इतने ईज के साथ एक्टिंग किया करते थे कि मुझे नहीं लगता है कोई भी एक्टर आज की डेट में ऐसा कुछ कर सकता है। फिर दौर आया तलवार के बाद राजी। जब राजी मेघना जी ने जब मुझे फोन किया दोपहर को 4 बजे, मैं सो रहा था, तो मैंने फोन उठाया और देखा कि मेघना जी का कॉल है। तो मैंने कॉल किया उनको। उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहा करते थे कि आपको मेरे साथ काम करना है। तो मैंने कहा हाँ जरूर काम करना है। तो लीजिए, एक रोल है मेरी फिल्म में, ये शख्स हैं जो आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो उन्होंने मुझे उस शख्स का नाम दिया। मैं वहां गया, कहानी सुनी, वापस आया, बहुत पसंद आई कहानी। और फिर उसके बाद जो भी हुआ सबके सामने है। फिर उरी जब हम शूट कर रहे थे राजी, तो विकी ने मुझे कहा था कि मैं एक ऐसी फिल्म कर रहा हूं जिसमें मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना है, मसल पुट ऑन करना है। तो मैंने कहा कौन सी फिल्म है? ही सेड मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक आर्मी बैकग्राउंड पे फिल्म है। तो मैंने विकी से रिक्वेस्ट की कि भैया अपने डायरेक्टर से कहो कि मुझे भी ले ले, साथ में हम पैकेज डील कर लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ। पता नहीं विकी ने बात की कि नहीं की, लेकिन एक दिन मैं जब शूटिंग से घर आ रहा था, तो शाम को कुछ 5:30 बजे मुझे फोन आया कि प्लीज आ जाइए, आदित्य धर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आदित्य धर कौन? बोले कि डायरेक्टर हैं, एक फिल्म कर रहे हैं वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जब मैं वहां पहुंचा, उनसे बात की, तब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी फिल्म है पूरी। तब मैंने कहा कि विकी भी है क्या इसमें? बोला हाँ विकी भी है। तो ये फिल्म विकी ने मुझे बताई थी उस समय जब हम राजी शूट कर रहे थे पटियाला में। एंड परेश रावल भी थे उस फिल्म में। परेश रावल और मैं एक साथ पढ़े यहाँ कॉलेज मुंबई में। इट वाज अ कॉलेज कॉल्ड नरसिम्हा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। परेश और मैं एक साथ स्टेज पे भी आए। Our first play from college was I was with Paresh, directed by Jaydev Hatangadi, जो रोहिणी हतंगड़ी के हस्बैंड थे। उसके बाद 1974-75 के बाद 2018 में मैंने परेश के साथ पहली बार काम किया। इतने साल गुजर गए, इतने फिल्में गुजर गईं, हम एक साथ कभी नहीं आए पर्दे पे, लेकिन वो एक फिल्म थी मैंने और विकी ने और मैंने और परेश ने, ऑफ कोर्स विकी के साथ दूसरी फिल्म थी, परेश के साथ पहली फिल्म थी पर्दे पे। तो मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया आदित्य धर के ऑफिस में। मेकअप आर्टिस्ट को बुलाए, बोला कि इसके बाल ना पूरे वो शो कर दो, फोटोग्राफ सामने रखी, और मुझे कहा कि चलो अच्छा अब यूनिफॉर्म पहन लीजिए आप। मैंने कहा ठीक है यूनिफॉर्म पहन लेता। मतलब उन्होंने मेरे साइज का यूनिफॉर्म बना के रखा हुआ था, शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा फिट आया जैसे मेरे लिए ही बनाया गया था वो यूनिफॉर्म पहना मैंने, और बोले कि हाँ अब कुछ फोटोग्राफ्स ले लेते हैं।
हमको दिल्ली भेजनी है, आर्मी हेडक्वार्टर्स। मैंने कहा ठीक, ले लीजिए आप। तो मैंने फिर आदित्य जी से पूछा कि अब फोटोग्राफ भेजेंगे, मतलब थोड़ा वक्त लगेगा। ही सेड नहीं नहीं, कोई मेरे लिए कोई वक्त नहीं है, यू आर देयर इन द फिल्म, यू आर डूइंग दिस रोल, पीरियड। ये हम खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे भेज रहे हैं, ये डेट्स हैं, हमको इस दिन पे आउट ऑफ इंडिया जाना है और इतने इतने दिन लगेंगे, प्लीज जरा सेटल कर लीजिए, आप प्रोडक्शन से बात कर लीजिए, पैसे वैसे के बारे में सब कुछ बात हो गई। और मैं रवाना हुआ यहाँ से, पूरी खत्म हुई, पूरी शूट हो गई। उसके बाद नितेश तिवारी का फोन आया छिछोरे के लिए। अब दंगल क्योंकि मैं कर चुका था नितेश जी के साथ, एंड आई कुड नॉट रिफ्यूज हिम बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी गुड रोल एज फार एज आई एम कंसर्न। और सुशांत के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि हम साथ में टेलीविजन तो हमने साथ में किया, लेकिन कभी मौका नहीं मिला उसके साथ काम करने का, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा शो कर रहे थे और मैं भी फिल्म सिटी में शो कर रहा था। तो हम लोग साथ में खाना खाया करते थे दोपहर को कभी कभी। तो आई न्यू सुशांत वेरी वेरी वेल, but never had the opportunity of working with him. So we started working on Chichore. I loved working with Sushant and Shraddha. Both of them are fantastic people to work with. Great time. And बस उसके बाद फिर अब वेब सीरीज की बहुत सारी, Bard of Blood for Shahrukh Khan's company, Red Chillies, वो Netflix पे आई. That was an original Netflix show. मैं एक नेटफ्लिक्स की फिल्म कर रहा था, सचिन कुंडालकर एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर राइटर हैं मराठी के, तो उनके साथ हम फिल्म कर रहे थे केरला में। लेकिन ये वायरस शुरू हो गया, हमने कुछ एक हफ्ते शूटिंग की होगी, हमको वापस आना पड़ा। एक फिल्म मैं कर रहा था लखनऊ में, अप्रैल में जाना था, वो नहीं हो पाई, अब पता नहीं कब होगी। और एक इंटरनेशनल फिल्म थी, वो क्रू यहीं इंडिया में, इंडिया नहीं कहीं बाहर, मैं बता नहीं सकता कहाँ थे वो, लेकिन वो थे यूएसए से आए हुए थे, हॉलीवुड का प्रोडक्शन था, वो भी वापस चले गए। तो अब घर में बैठ के अब क्या किया जाए, तो मैंने जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है हर्ष, मैंने 6 फिल्में कर ली हैं घर पे। ग्रेट सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, क्या आप शूट करेंगे? मैं कहता हूं जरूर शूट करूंगा। और मेरी वाइफ ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया। जितनी भी फिल्में हैं घर में, सब उन्होंने ही शूट किए। एक आईफोन कैमरा है 11 प्रो, उसके साथ उन्होंने सारी फिल्में शूट की हैं। कभी आज इसके पहले उन्होंने कभी शूट कैमरा हैंडल नहीं किया था, मतलब फोटोग्राफ्स लिया करती थी लेकिन मूवी शूट नहीं की थी। और एक फिल्म मैंने हाल ही में की है जो मेरे सन इन लॉ ने शूट की है। रात को हमने एक कमाल की फिल्म शूट की है, तो दोनों ने मुझे हेल्प किया बहुत। खैर मेरी वाइफ ने तो बहुत ज्यादा हेल्प किया। और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कुछ फेस्टिवल्स में गई हुई हैं। शाहरुख खान की एक रेड चिलीज का एक फेस्टिवल है, सुनील शेट्टी साहब का एक फेस्टिवल है जो उन्होंने अनाउंस किया, FTC। तो ऐसे दृश्यम फिल्म्स का एक फेस्टिवल है, मुकेश छाबरा का एक फेस्टिवल था। तो ऐसे करते करते 6 फिल्में हो गई, मुझे अच्छा लगता है। उनमें से एक फीचर फिल्म है। घर में बैठ के 10 एक्टर अपने अपने घरों में, इंडिया और सिंगापुर में अपने अपने घरों में बैठ के उन्होंने एक फिल्म शूट की है जो एक वेब सीरीज के तौर पे शूट की गई थी। 10 एक्टर थे, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा कि यार वेब सीरीज क्यों, इसे एक फीचर फिल्म बनाते हैं। तो लॉकडाउन में एक फीचर फिल्म बनी है, 94 मिनट्स की एक फीचर फिल्म बनी है। वो फीचर फिल्म कास्ट के लिए हम या तो 23 को देखेंगे या 25 को देखेंगे। फिर अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है, कहां आती है, क्या होता है, क्योंकि थिएटर में आना तो नामुमकिन है अभी। तो बस ऐसे चल रहा है। कुछ मेरी वर्कशॉप्स भी हैं, वर्चुअल वर्कशॉप्स में थिएटर की वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पोइट्री रिसाइट करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, उस आवाज में हमें कुछ पोइट्री रिसाइट करके दीजिए, हम YouTube पे डालना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर। कुछ बच्चों की वर्कशॉप्स हैं,
मैं और हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं सिंगापुर में, वो ट्रेन टीचर हैं, तो उनके साथ मैं बच्चों के लिए एक कुछ फन टाइम्स विद किड्स 5 और 10 साल के बीच में हमने 2 ऐसी वर्कशॉप्स कर ली हैं। अब 11 से 14 के बच्चे जो हैं उनके साथ हम एक 1 जून से वर्कशॉप करने जाएंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन तो खुलने वाला नहीं है। और कलकत्ता में आपको पता है कि क्या हुआ, मतलब वो तूफान जो आया था, कंप्लीटली डिवास्टेटेड कोलकाता। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हैं हर्ष, सबको अपना अपना पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव चीजें बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी बोला गया है, जितना भी लिखा गया है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी केप्ट असाइड बिकॉज द वायरस इज देयर, नोबडी कैन डू नथिंग अबाउट इट। लेकिन उसके बावजूद आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, कैसे पॉजिटिव रहना चाहेंगे आप लोग? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो, मैं काफी सुनता था कि लोग काम पे जाते हैं और ऑफिस में सोचते रहते हैं कि आज शाम को ना मैं कुछ घर जाके लिखूंगा या घर जाके कुछ गाऊंगा, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। अपने अंदर जो एक पैशन है वो परस्यू करना चाहिए। जब तक आप परस्यू नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लिए कुछ करके दिखाइए, बी पॉजिटिव, टेक योर पैशन टू अ डिफरेंट लेवल altogether. Show your wife that you can write 10 lines, that you have written 10 lines. Show your children that you can actually sing. And show your parents the love that you want to show because you've never been able to show it. सब लोग कंप्लेन करते हैं कि यार इतना काम होता है, इतना काम होता है, हम थके आते हैं, घर पे खाना खा के सो जाते हैं। अब आपको 60 दिन से ज्यादा भी मिले हैं, आपने इन 60 दिनों में क्या किया? अपने फैमिली के साथ कितनी बॉन्डिंग की है? अपने बच्चों के साथ आप कितना खेलते हैं, कितना हंसते हैं? आई नो यू कैन नॉट गो आउट, लेकिन घर में बैठ के आप ताश खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। यू नो हर्ष, ये एक बहुत अजीब और गरीब चीज है कि यूथ, आज का जो यूथ है वो बात नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करता है, अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करता है, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स से भी बात नहीं करता है। छोटे हो बड़े हो उसका सवाल नहीं है, आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको बाहर निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आजकल सुसाइड इतने क्यों हो रहे हैं? बच्चे क्यों कूद के अपनी जान दे देते हैं? मतलब 10 मार्क कम आए तो आप अपनी जान ले लेंगे। इससे बेहतर ये नहीं कि आप अपने टीचर्स के साथ बात करें, अपने पेरेंट्स के साथ बात करें कि क्या प्रॉब्लम क्या है, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज बॉदरिंग मी, इज इट द स्टडीज, इज इट टू मच दैट आई हैव टू स्टडी, व्हाई हैव आई टेकन दिस कोर्स? You have to speak to your parents, you have to speak to your friends. If you have friends, speak to them. That's the only way you're going to be able to separate your problems. Absolutely. And try and find a solution to this entire situation. एक बहुत ही अच्छा कमाल का वीडियो हमने जो किया था YouTube पे, Talk to Them. 6 एक्टर हैं हम. Yeah, I've seen. You've seen that. The students, the youth of today must see that. That is particularly meant for them. They don't talk यार. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार बातचीत करने से क्या होगा, कौन सा हल निकल आएगा। हल शायद नहीं निकले, लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा। So I think it is necessary for students to have a dialogue with their parents, with their friends, with their sisters, brothers, uncles, aunts, whomever you want to talk to. Wonderful. Whatever your equation is.
Sir, one question which I want to ask. Sir, you did many roles in television as well as films, and as far as now you have done in web series also. Sir, which one was the act which is closest to your heart? I think Razi. Yeah, Razi it is was the closest to my heart. I got that role. I was very happy that I got it. Talwar was another very, very good role that I got. Although उतना screen time नहीं था जितना राजी का screen time था, लेकिन मैंने एक short film की है with none other than Mr. Nasiruddin Shah. वो मेरे idol रहे और idol मतलब मरते दम तक मेरे idol ही रहेंगे वो. एक शॉर्ट फिल्म की है जो YouTube पे है जिसका नाम है रोगन जोश. प्लीज जितने भी लोग आप शायद इस पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब भी आप रिकॉर्डिंग पब्लिश करेंगे तो लोग देखेंगे, सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को. प्लीज वॉच रोगन जोश with Mr. Nasiruddin Shah, myself, Bhuvan, एक एक्टर हैं, अवंती अकेरकर. Please watch it. It's a fantastic short film, 17 minutes. तो ये 3 रोल मेरे बहुत ही करीब हैं. सबसे ऊपर ऑफ कोर्स राजी है, because I think I got वो एक वो कहते हैं ना कि चुटकी में एक कुछ हो जाना चाहिए, और मेरे लिए राजी ऐसी चुटकी में सब कुछ हो गया और मेरी लाइफ शायद थोड़ी सी बदल गई प्रोफेशनली. Sir, as we have seen recent days, pandemic is going on and we don't know how long will it carry on. Sir, what would you like to comment on how much it has affected Bollywood industry? Well, it has affected Bollywood industry to a great extent. I mean, you cannot imagine the kind of losses that people are incurring, production houses are incurring. There is no earnings at all, especially the workers who are probably the most badly hit. जो daily wages workers हैं, जो रोज आते हैं काम के लिए, काम ढूंढने के लिए, जो रोज काम करते हैं, जिनकी आमदनी सिर्फ रोज की रोज होती है, because they are not on the payroll. So I think it is very sad that this pandemic has hit so badly that this film industry, अब काफी वक्त लगेगा फिल्म इंडस्ट्री को वापस अपने नॉर्मल सी पे आने के लिए, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी नॉर्मल सी पे आएगी फिल्म इंडस्ट्री. पहले धीरे उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा शूटिंग के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, एक यूनिट में 200-300 लोग होते हैं जो काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, जो खाना लाते हैं वो होते हैं, जो चाय पिलाते हैं आपको स्पॉट बॉयज वो होते हैं, लाइटमैन होते हैं, कैमरा असिस्टेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं. तो काफी वक्त लगेगा लोगों को नॉर्मल सी पे आने के लिए. अब पता नहीं कैसे आएंगे, वो गवर्नमेंट और फेडरेशन बैठ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस उनको बनानी पड़ेंगी, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गियर करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन, डॉक्टर्स, ग्लव्स, मास्क, जो भी है. तो पता नहीं कैसे होता है, लेकिन यस, इट इज इम्पैक्टेड द फिल्म इंडस्ट्री. नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इट इज इम्पैक्टेड almost every industry in this country, not only in this country but all over the world. Sir, what would you like to say? What can be the learning for all of us from this pandemic? Be positive. Do something for yourselves. Do something for your family. You need to learn, because everybody says ki we don't have time, we don't have time, we don't have time. I think this is a blessing in disguise for everyone. Do something that you can, anything that you want to do. Help someone. Help your people who used to come to work to your house, जो आजकल काम पे नहीं जा सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए. बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शायद अपने स्कूल के दौरान
आप बातचीत बहुत किया करते थे या कॉलेज के दौरान बहुत बातचीत करते थे, वो कहीं खो गए, उनके नंबर ढूंढ के उनके साथ बात कीजिए, बहुत मजा आता है। हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं यार, मतलब बच्चे घर पे हैं, बच्चों के साथ खेलिए। डोंट फॉरगेट अबाउट द कोरोना वायरस, इट इज देयर। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू वेयर ग्लव्स, यू हैव टू वेयर मास्क, you have to remove your shoes outside. All that is there. Don't touch anyone. Social distancing रखिए, कीजिए, all that is there. लेकिन उसके साथ साथ आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप डिप्रेस होते हैं तो पूरी फैमिली डिप्रेस हो जाती है। तो वो डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड अगर आप रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी फैमिली ऐसे धुप करके बैठ जाएगी। तो हंसिए, खेलिए, माँ बाप के साथ बात कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ के साथ बात कीजिए, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ बात कीजिए, हंसिए। ऑफ कोर्स बाहर नहीं जा सकते आप, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाहर बालकनी में बैठ के एक ड्रिंक कर लीजिए अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ, बहुत मजा आता है। Sir, what would you like to comment on what we can expect its after effects? I don't know really. I cannot even imagine कि what is going to happen. ये कब खुलेगा, क्या होगा? हम वेट कर रहे हैं, रोज वेट करते हैं, रोज पेपर में पढ़ते हैं कि बंबई में इतने केसेस हो गए, महाराष्ट्र में इतने हो गए, इंडिया में इतने हो गए। तो ये कब खत्म होगा और माइग्रेंट वर्कर्स वापस घर जा रहे हैं। एक बार वो घर चले गए, वापस कब आएंगे ये मुझे पता नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स को जाने नहीं दे रहे हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है स्टेशंस पे, हाईवे पे, लोग नहीं जाने दे रहे हैं। तो कार्स को तोड़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू टेक दिस वेरी वेरी केयरफुली। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ वी हैंडल द सिचुएशन आफ्टर पैंडेमिक। कब खत्म होता है भगवान जाने। अब तो 31 मई तक है लॉकडाउन यहाँ मुंबई में, शायद 15 दिन और एक्सटेंड होगा 15 जून तक, क्योंकि यहाँ मुंबई में तो बहुत बुरा हाल है, रोज कुछ 1000 केसेस निकल रहे हैं। तो आई थिंक एंड कलकत्ता में जो अभी तूफान आया, तो टू गेट बैक टू नॉर्मलसी इज गोइंग टू बी सच अ हरक्यूलियन टास्क. People must understand, and I think everybody must pitch in to try and help people from all walks of life. It is necessary. एकजुट के अगर काम करेंगे, एक ग्रुप बन के काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बजाय कि आप आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे। तो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी पैसे चाहिए होते हैं, थोड़े थोड़े जमा करके अगर उनको देंगे या राशन देंगे, जैसे हम करते हैं हमारे सोसाइटी में। तो हमने एक फंड ओपन किया हुआ है सोसाइटी में, 4 वॉचमैन हैं, उनको पैसे दे देते हैं या उनको राशन दे देते हैं, तो उनका चलता रहता है खाना पीना। Wonderful, sir. Sir, that is, as this conversation is getting more serious, so sir, I would like to make it a little crunchy. Sir, one question from my side. Sir, as you are right now in this acting field, if you ever get a chance, then what would you like to be? What would I like to be where? मतलब मैं समझा नहीं question. Sir, in any other field in which you want to No, try? I am very happy being an actor. I don't want to direct. I don't want to produce. I don't want to write. I don't want to do anything. I would just want to be an actor, and I am a director's actor, so I find it very very stimulating for me when somebody directs me and says, "Shishir, we want this from you. We don't want this from you." So it gives me that great high as an actor. I just want to be an actor. Thank you so much. Sir, if you ever get a chance to move back to your life, then what was that time in which you want to go back? I want to go back to my teenage days, which was carefree, कोई responsibility नहीं उस समय, कॉलेज में तफरी मस्ती, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। खैर अब तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। मेरी शादी को 42 साल हो गए। मेरी 2 खूबसूरत सी अच्छी सी डॉटर्स हैं, उनके
बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी है जो 10 साल की है, जो मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर नहीं है, लेकिन उसकी माँ हमारे साथ अभी तक 24 साल हो गए, उसकी माँ हमारे साथ काम करती है, हाउस हेल्प है, लेकिन हम उसे हाउस हेल्प के तौर पे नहीं मानते हैं, वो हमारी फैमिली की मेंबर है, सदस्य है। तो उसकी बेटी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो अब 10 साल की है, 7 मई को उसका जन्मदिन था। तो हाँ, तो आई लाइक टू गो बैक टू माय टीनेज डेज एंड एंजॉय माई सेल्फ एंड गो Great. अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम। Sir, what would you like to give the message to all upcoming those who want to get into this field of acting and singing? What would you like to give them a message? जो भी इस एक्टिंग फील्ड में आना चाहता है, प्लीज डोंट फ्लर्ट विथ एक्टिंग, बी कमिटेड, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी फोकस्ड। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी पढ़ाई खत्म कीजिए। माँ बाप ने पैसे दिए हुए हैं, लगाए हुए हैं आपको अच्छी पढ़ाई देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए। फिनिश ऑल दैट, देन गेट इनटू दिस एक्टिंग फील्ड। और मेरे हिसाब से जितने भी एक्टर्स या जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो प्लीज थिएटर से शुरू कीजिए, थिएटर से बेसिक्स शुरू कीजिए। उसके बाद डोंट यूज थिएटर एज अ स्टेपिंग स्टोन टू द फिल्म इंडस्ट्री। वो एक अलग हिस्सा है, थिएटर एक अलग हिस्सा है। तो प्लीज और शिद्दत से काम कीजिए, क्योंकि हर एक फील्ड में आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड डिटर्मिनेशन एंड यू नीड फोकस। अगर ये 3 चीज नहीं है किसी भी फील्ड में, अगर आप ये शो कर रहे हैं, आपको पता है कि 11 बजे आपको आना ही आना है, तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर आप 11 बजे आएंगे। वैसे ही अगर आपको कॉलेज पहुंचना है, 9 बजे का लेक्चर है, तो आपको 8:45 बजे कॉलेज पहुंच जाना चाहिए। अगर आप फिल्म के लिए 6 बजे का शो के लिए आपने फ्रेंड्स के साथ टिकट खरीदे हुए हैं, तो आप 5:45 बजे पहुंच जाते हैं, पॉपकॉर्न भी खा लेते हैं। तो अगर कॉलेज, Hello. हाँ जी, Yes, sir. It was a wonderful message, and it was a wonderful interaction. Thank you so much, sir, for joining us. Thank It you. is really Thank you going much. to be a memorable moment for all of us, sir. If this was Thank a you. physical event, sir, if this was a physical Sorry? event, I must have taken a selfie with you. Surely. Thank you. Anytime. Thank you so much, Thank sir, you. for joining us. Thank you.